So over to you. Thank you. Good morning, one and all. I'm excited to welcome you to the first panel discussion of Market Update web series by HGH India. As you're aware, it is a knowledge sharing platform created to celebrate 10 years of HGH India's service to the home industry. This is Madhur Jain from HGH India team. Let me also tell you that we are preparing very well for HGH India 2021. The dates are from 8 to 11 June, and it will be a 4-day show. The bookings are already on and many are already done. Hope you all had a good festive retail season. As the topic for today's discussion is, how was Diwali sale for home retailers? What is the outlook for near future? I'm pleased to introduce our 5 panelists for today's discussion. Let's welcome Mr. Jagdish Khandelwal, Managing Director at Jagdish Stores from New Delhi. His contribution to retail industry in India is unmatchable, and his strategies have inspired many entrepreneurs to take the plunge into home furnishings market. His retail ventures include Jagdish Stores and Studio, located in the heart of the cities like Delhi, Kolkata, and Ludhiana. With his clear understanding of the market and invaluable personal experience, Jagdish Store today ranks as one of the best specialty retail format store in the industry. A warm welcome, sir. Next panelist is Mr. Mahavir Samdaria, Managing Director at Petals from Bengaluru. Mr. Samdaria runs a chain of retail stores together with his 3 sons in Bengaluru and hold an experience of around 15 years in the industry. Petals is very popular among architects and interior designers for a vast collection in national and international designer brands. Also well known for its projects in the hospitality, corporate, and high-end residential sectors. Please join in, sir. Our next panelist is Mr. Nirav Meswani, Director at Surprise Home Linen from Mumbai. An MBA in Marketing and International Business, Mr. Meswani has been involved in the high-end home textiles business for over 15 years now, and he has been instrumental in operational and strategic aspects of Surprise Home Linen. Incorporating international standards to home decor, various international and Indian brands are part of Surprise Home Linen's selection of bed and bath range. A warm welcome, sir. Moving on, our next panelist is Mr. Rajesh Mahajan, Managing Director at Maspur Industries Private Limited, joining us from New Delhi. Starting out in the family business in 1976, Mr. Mahajan launched Maspur in the year 2002. The brand manufactures and retails home decor products for all the rooms of the house. The company operates exclusive stores in Delhi, Gurgaon, Noida, Mumbai, Ludhiana, and Pune, and has presence in leading stores across India, as well as online through maspur.com and major marketplaces. Maspur is also available in stores in global markets. Mr. Mahajan is assisted by his 2 sons, both of whom are actively involved in Maspur. Welcome, sir. Our next panelist is Mr. Suleiman Hirani, joining us from Hyderabad. He's the founder and partner at Darpan Furnishings. Darpan Furnishings is a multi-brand 6-store network for all home furnishings need. Darpan is all about weaving an exclusive style statement for every home. In fact, Mr. Hirani takes pride in styling of over 1.5 lakh homes across South India. He's supported by a seasoned top management and a 130 plus workforce. A warm welcome to all our panelists.
I'm sure the audience would have many questions for our panelists. We will try to cover maximum towards the end of the session. Please post your questions in the Q&A tab at the bottom of your screen. Now let me invite Mr. Arun Rungta, Managing Director at HH India, with over 35 years of experience in the home industry. I would like to invite him as the moderator for today's panel discussion. Welcome, Mr. Rungta. Over to you, sir. Thank you very much, Madhur. A very warm welcome to the doyens of the industry, Jagdish ji, as somebody rightly said, Bhishma Pitama of the furnishing industry. Rajesh ji, the man who's credited, his family and he himself are credited with creating Panipat as the furnishing hub, which you know is today one of the largest exporting and manufacturing hub in furnishings and home textiles in India. Very experimental, I would say, Nirav. Very experimental and very adventurous, bringing in some modern attitude into a traditional business. So it is nice. I have known all of you so well for so many years now, and I've seen each one growing. Amazing has been Suleiman Bhai's growth in 5 years. I think almost every year he's been adding a new store. So for those who does not have a great future, I think they really need to look at Suleiman Bhai very closely. Suleiman Bhai, I think you need to really share your secrets with our audience who are all sitting across the country. That how did you manage to do that? And Mahavir ji, I got thanks introduced to you by Jagdish ji, and I think I'm yet to see your store, so I'm not able to comment, but my team has already seen that, and I understand that you are doing an amazing work out of Bangalore and growing very rapidly and bringing in a lot of new ideas in retailing in Bangalore. So welcome all of you, and today, see, we, as all of us can say that 14th or 15th of November was the day we were all waiting for very eagerly, very curiously for almost 2-3 months, almost, I would say, since July. Because how will the Diwali season go? Whether the retail will take off, not take off, whether consumers will turn to the stores or not, what will happen with the onslaught of online retail, because everybody has been talking just that, as all of us know. But now today we are in a position for the first time. The very important objective of today's discussion is that we were anticipating things. But today I think the audience will be able to know that what actually happened, and the audience will be able to know this from the people who are at helm of affairs across the country. So that is why we chosen our panelists from Bombay, Delhi, Bangalore, Hyderabad, and Rajesh ji, of course, has shop-in-shop and stores in many countries besides Delhi. I'm sure Rajesh ji, little bit you will be able to tell more about Masper when we start. So I would not, I would really believe that today's panel discussion should really give a lot of direction to everybody who's joining us today about how to take their business forward and how to look at the future from here on, based on what happened in last 3 months. My own personal feedback is very positive, but how positive, I do not want to preempt the panelists' opinion by saying, because today I'm definitely going to play a role of a moderator rather than sharing my own personal view, because that is not my role today. So I would begin this by first of all requesting Rajesh ji to tell us little bit more about, but I would request that everybody be brief, but little bit more about Masper in 3-4 sentences, so that people understand your perspective when you talk better. Thank you, Arunji.
Actually, Masper started or came into being after, what shall I say, around 24 years of experience in selling to international brands and retailers. So we decided that India is the market where we should be. In fact, we had tried in the mid to late 80s to start in India, but we were not very successful. And we started in 2002 with one store which was outside the markets. And at the in the beginning we were approached for selling product to different retailers as well as to large format stores, but we were trying to establish a identity and a look where people could see how the product we wanted to show should be shown. So it wasn't until 2006 or 7 that we started venturing out beyond our own stores. And in distribution, we actually went into only around 6 years ago. Prior to that, we were very restricted, and we started toying with the idea of going online in 2012-13, but it was a while before we actually were able to do that. And we even tried mail order catalog in 2004, which was probably one of the earliest and complete failure at the time. So we have tried a lot of things, and we, I think, finally found our mix and the way we need to go forward. Thank you. अब जगदीश जी से तो मैं क्या कहूँ, जगदीश जी आपका इंट्रोडक्शन तो मांगना भी नहीं समझ में आता, बट फिर भी लोग आपके मुंह से जरूर सुनना चाहते हैं जगदीश स्टोर की प्रोफाइल, 2-3 सेंटेंस कि how do you conceive, what do you think about Jagdish Stores? Actually क्या है अरुण जी, थैंक यू वेरी मच. और सबसे अच्छी बात क्या है कि बिकॉज नाउ राजेश जी हैज गिवन लॉट ऑफ आइडियाज कि हाउ द बिजनेस हैज टू बी इन द फ्यूचर, एंड ही हैज गिवन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज की वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क विद अ स्मॉल केसमेंट एंड मैटी एंड बेड कवर, एंड स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे कस्टमर्स की डिमांड आती रही, कस्टमर रिक्वायर, बिकॉज कस्टमर इज द टीचर टू अस. इससे बड़ा कोई टीचर और कोई मैनेजमेंट में टीचर नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि कस्टमर की आवाज हम सुन के और कस्टमर के पॉइंट से अगर हम चलते रहते हैं तो हमें पता है कि हमें कहाँ पहुंचना है, वो कहाँ पहुंचा देता है. हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करते करते हम अपने काम को लगे लगन के साथ. और एक्चुअली कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अपना धीरे धीरे सब चीजें जिस चीज की डिमांड ज्यादा बनती चलेगी उस हिसाब से इसको बनाते चलेंगे. लेकिन नाउ पॉइंट ये टाइम टू टाइम ये फैशन डेवलप हो रहे हैं, चीजें डेवलप हो रही हैं. पहले जब हम कभी बात करते थे क्या इंट्रोड्यूस करते थे, व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग, हम कहते हैं बेड कवर बेचते हैं, टॉवल बेचते हैं, तो पीपल डू नॉट गिव ए गुड रिकॉग्निशन एट दैट टाइम, एंड दे फील अरे क्या छोड़ो आगे चलो. लेकिन आज की तारीख में बिकॉज जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है और लोगों का ट्रैवलिंग, फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होने लगी है और लोगों को फंड पैसा भी बढ़ा है और एजुकेशन भी बढ़ी है, तो उससे नाउ पीपल लाइक टू लिव इन ए स्टाइल एंड इन ए फैशन. तो पहले अब कस्टमर, हम सब लोग सोचते थे कि अपने आप को एज ए जेंट्स या एज ए लेडी अपने आप को सजाने के लिए, अब घर सजाने की बातें हम करने लगे हैं. एंड दिस होम इज नाउ इज बिकम द प्रायोरिटी. इस कोविड के टाइम में हमने देखा कि पूरी फैमिली, घर, बच्चे भी, वाइफ भी, मैं भी, सब अपने घर में एक घर में बैठ गए हैं. तो हमें कोविड ने सिखा दिया कि घर को मेंटेन करना, घर को बना के रखना. घर में ऑफिस भी कैसे चलेगा, ऑफिस में स्कूल भी कैसे चलेगा, और ऑफिस में घर से ऑफिस भी कैसे चलेगा, दुकान भी कैसे चलेगी. तो ये सब चीजें हमें सर्कमस्टांस ने, इस कोविड ने हमें, रादर दिस इज अ चैलेंज जो हमें मिला, और हमने इसमें आई थिंक वी हैव कम आउट टू मच आउट ऑफ इट. लेकिन इसमें सरदर्दी काफी रही, लेकिन क्योंकि जब भी कोई चेंज आता है तो हमें कुछ सीखने को मिलता है. एंड नाउ टाइम हैज कम, जैसे राजेश जी ने बताया कि भाई हमें जितने भी मेथड हो सकते हैं रिटेलिंग के लिए, कस्टमर तक पहुंचने की अप्रोच, वो सारी ही स्ट्रीम हमें अटेंड करनी पड़ेगी, उसमें कोई हमें रास्ता नहीं है. थैंक यू जगदीश जी. सुलेमान भाई, हाउ मैं आपके स्टोर देख चुका हूं, तो आई थिंक इट इज अमेजिंग द वे यू हैव ग्रोन. सो व्हाट इज द रियल सीक्रेट?
The real secret is hard work, and as Jagdishji said, follow the customer. The customer is the teacher, and when we started the journey, we started with one store, and we took nearly 8 to 10 years to expand into the second store. And when we were able to run 2 stores professionally, and then it became easier to keep on adding a store per year. As you said, in the last 5 years, we have added 5 stores. And the second store took us 10 years to start because to understand. Then once we started that, once we did that jump, then we understood the game. Then we started swimming. So now we know how to expand and how to run multiple stores. So, and as Jagdish rightly said, for me also teacher is always my guru because I spend a lot of time on the floor now also to observe the customers, talk to the customers, understand them. Then that gives us a perspective to make our strategy. I understand amongst the panelists we have today, Sulaiman Bhai, you are the one who has made the big moves towards diversifying the product range in your store. Yes. So what has been behind that? I'm sure people would like to know. You have added a lot of decorative accessories, you added houseware products. You originally were essentially a furnishing store. Yes, we were essentially a furnishing store, but when we started as a furnishing store also, we started as a complete furnishing store. We didn't start only with curtains and only parda. When I started the furnishing store and I added bed sheet, everything, bed and bath, mattresses. So I think at that time the furnishing store were only about curtains and upholstery. So when I started with a complete home and furnishing from the day one. And in the last 8 years, when we evolved, and then we understood that the home category needs everything. Then we entered into decorative, then we entered into crockery, cutlery, glassware. So slowly we are moving towards a lifestyle store rather than a furnishing store. Okay. Yeah. Nirav, how do you survive? Sorry. Nirav, how do you survive in a high cost city like Bombay and continue to stay not afloat, but I think continue to grow? So, first of all, thank you, Arun and team at GH for the platform, and thank you for inviting me. I think amongst the panelists here, probably I'm, in that sense different, that we have a smaller retail presence in terms of a per square foot area. And of course, the reason, as you said rightly, is that the retail space of Bombay is so expensive. The real estate itself is so expensive that if you grow too large, the business model doesn't make any sense at all. I think effectively targeting the right kind of customer. So again, we are completely opposite in terms of Sulaiman Bhai, in that sense that instead of growing our product range and reaching out to more customers, we are actually narrowing down and becoming specialist in a particular category and getting deeper into the pocket of the same customer. Okay. So we are probably one of the few ones who have reverse integrated. We were first into bed and bath and then went into furnishings. Okay. Good. Mahavirji, Bangalore, I am always told South is very conservative. बहुत conservative है वहाँ पे consumer. लोग पैसा खर्च करते नहीं है furnishing में, as compared to North. I am not saying this. I am just sharing with you what I keep hearing. So please don't hold me for that. But उस माहौल में you have been growing and you have been adding stores in Bangalore. So what has been the strategy behind Petals? I will put it as this, like this. Bangalore is different from South. Okay. Chennai is, we can say the Chennai is very conservative about everything. For their lifestyle, everything is different. In Bangalore, it is very modern. They say the fashion develops from Mumbai and comes to Bangalore. Okay. हमने जब शुरू किया था, it was a very difficult period when we entered in the market, 2005. Where the supplies were monopolized by all the earlier retailers. To get the product, it was difficult for us. Okay. So it took us 2 years to get the products in our store. To convince the suppliers, yes,
we are able to sell. And then we gave the results. So they And had today, the confidence. you have Petals. How many stores do you operate in We Bangalore? have three showrooms. 3 stores. And we have a constraint of the size also. Even the Bangalore real estate is very expensive. All the 3 showrooms are around 3,000 square feet. But still, we were able to penetrate the market. We knew what is required in Bangalore. The international brands we introduced in Bangalore. The high-end products also we introduced in Bangalore. The best brands available in the world, we tried to obtain it. The architects and the designers were happy with our services, our products. And somehow we made the inroads into the existing market, and we created our own market again. Okay, so we will thank you, Mahavirji. I think we will come to the question now. जिस सवाल का जवाब सब सुनने के लिए I'm sure बेचैन होंगे बहुत कि दिवाली में फायर क्रैकर्स रिटेल पर कैसे रहे. बाकी तो सरकारों ने हर जगह बैन कर दिया, उनको मनाही कर दी घरों में बच्चों के लिए तो, बट कंज्यूमर्स कितने फायर क्रैकर्स लेके आए आप लोगों के एक्सपीरियंस में दिवाली पे कैसी रही दिवाली की सेल. सो ये सवाल मैं सबसे पहले शुरू करूंगा आई थिंक नीरव से. नीरव, बिकॉज बॉम्बे इज मल्टीकल्चरल, मल्टी डायमेंशनल, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? दिवाली की सेल कैसी रही आपकी बार? आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली ऑफ द पीरियड फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, ये 3 महीने की. सो प्लीज कीप दैट पर्सपेक्टिव नैरो. Yeah. No, because there's no perspective for pre-September. So it has to be post-September. It was actually a very good Diwali. I think better than what most of us expected. And from what I've spoken to everybody across the city as well as across the country in our trade, it has been a great Diwali for everybody. If you want specific numbers, I think we were probably at about 85 to 90% of our regular Diwali sales. Which to me was fantastic considering that we were at 0% just a couple of months back. Okay, so you picked up that 90% sale basically in 2 months, 2.5 months period. Yeah, so I'm talking about month on month. जो period गया वो तो गया, but overall I think it was quite nice to see people spending the way they were. Sulaiman bhai, what was your experience in Hyderabad? Yeah, no, Hyderabad also Diwali did excellently well, and it maybe crossed our expectations because we were not expecting such a great footfall and such a great spending. And September, October, and November, as you say, till mid-November till Diwali, the sales were going up. The sales went up in October, that was there in September, and it went up in the 2 weeks of November as it went in October, and it was a great thing. And as we said, people were ready to spend. People came to spend, and they came to buy. So it was an excellent, actually jubilant mood in the customer. That it was almost similar to last Diwali, better than last Diwali. I would say we have reached the numbers of last Diwali, last year's Diwali. Yeah. The numbers were more or less equal, or maybe 3 or 4% more than the last year. Yeah. And भाई साहब, जगदीश भाई साहब, आप से तो सुनने को तो सभी बेचैन हैं. हाँ, नहीं. दिवाली सीजन यहाँ पर जो दिल्ली की जो हम सब लोगों की रिटेल जो दिवाली रही, जो मतलब 90% it was last as per the last year. See, हम इसको 100% नहीं अचीव कर पाए, और कोशिश ये रही कि किसी तरह से, लेकिन क्योंकि लास्ट के अंदर इवेंट बीच में तो रश नहीं था, लेकिन लास्ट के अंदर एकदम रश बढ़ा, क्योंकि लोगों को पहले ये नहीं था कि किसी को गिफ्टिंग देनी है नहीं देनी है, क्या लेगा, देगा नहीं देगा. वो लास्ट से आपका क्या मतलब? लास्ट कितने दिन में दिवाली? लास्ट अबाउट यू कैन से अबाउट 20 days. 20 days. 20 days. 20 days. It was a good
I mean, in the linen department, it has gone very nice. The carpet department also has gone very nice. तो उसने एकदम इसको क्योंकि रेडी चीज चाहिए कस्टमर को ले जाके लगाने, तो वो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा. और क्योंकि इस समय स्टॉक्स जो थे जनरली सारे स्टॉक्स ऑलरेडी खाली हो चुके थे रिटेल के अंदर काउंटर से, तो मैन्युफैक्चरर से टाई अप रखना, मैन्युफैक्चरर से माल को मंगाना, बेचना एक बड़ा जॉब था. लेकिन वो बड़ा अच्छे ढंग से हो पाया क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के पास भी ट्रैवलिंग का कोई ऑप्शन नहीं था हाथ के अंदर, बिकॉज एवरीबॉडी सेलिंग विद द व्हाट्सएप एंड वेबसाइट. वेबसाइट इतनी सबकी रेडी नहीं थी, बट व्हाट्सएप ने काफी होलसेलर्स को काम दिया. और होलसेलर्स का मैं समझता हूँ कि जितना भी आज तक का जिंदगी का जो रुका हुआ माल था सारा निकल गया. एंड काफी अच्छी होलसेलर्स के लिए बहुत अच्छी दिवाली रही है क्योंकि उनका माल सारा सब निकल गया, कुछ रह नहीं गया उनके पास. लेकिन रिटेल के अंदर दिल्ली में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो 90% का एक्सपीरियंस. 90%. महावीर जी, बैंगलोर सर. बैंगलोर if you look at post lockdown, अगस्त से सेल इंप्रूव होनी शुरू हो गई. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके हमें ईयर ऑन मंथ अगर देखें, लास्ट अक्टूबर से बेटर अक्टूबर हमारा रहा. एंड वी आर लुकिंग अप नवंबर should be very good. So the trend is continuing even after Diwali. Would you say that? Yeah. I see. Generally, after Diwali, it takes minimum 15 days to get the customers back on the floor. But इस बार हमने देखा है कि from the next day itself, customers were there. There were walk-ins. There were inquiries. So we don't see any letdown in for a day, 2 day, 5 day. ऐसा कुछ हुआ नहीं. जैसे जनरली होता है कि दिवाली के बाद 15 दिन का गैप आता है. इस बार नहीं. Okay. Rajesh ji, you have stores and shops spread into many cities. I would like just an update from you only how many stores and how many shops you have in how many cities across India today. And then the question would be, so how did you notice any difference in variance in sale into particular regions or particular cities? Or we have how was your experience? Yeah, we have 6 exclusive stores. Anji, how many stores? First of all, can you begin with that? Sorry? How many shop and in how many cities you are present? We are present in approximately 60 cities. आपकी थोड़ा आवाज कम आ रही है जगदीश जी, अपना राजेश जी. We are present in approximately 60 cities, I think. And we have over 100 what we call Masper shops, which are shop in shop. And then we have over 200 dealer network. So this is a pan-India spread. And as a company across all verticals, we were at 93%. We take a 4-week cycle. So, or you can say 30-day cycle. We calculate when it comes to festive season, we feel that the buying is we are basically into linen. So we find that the buying is generally compressed into 30 days. And we found that the first 4 weeks of this cycle was excellent. And in the last week, we saw a dip, but primarily in the north. We were up in the south, we were up in the west, we were up in the east. But in the north, we had a comparative minor drop within this because a lot of our product goes into gifting. So that was what we experienced. Okay, so you feel the north was relatively subdued? Yes, because I think COVID increased and, Delhi, you're finding that there are all kinds of things happening. And also we found that the high street stores were doing better than the mall stores. We have stores in high street as well as malls. Our shop and shops are also there in high streets and in malls. So the performance of the high street was better than the performance in the malls. So very good. So ये एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल गया है आपकी बात से कि मतलब कि जो स्टैंड अलोन स्टोर्स हैं, जो ट्रेडिशनल स्पेशलिटी स्टोर्स हैं, उनमें सेल बेटर हुई है कंपेयर टू द लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स
compared to the hypermarkets, compared to stores in the malls. So in any case, So even though we were up in the large format also, ऐसा नहीं है. I'm just saying that we're talking about, see, stores have opened quite late. Some high street stores have opened probably May, June onwards, and the mall stores have not opened almost until August and late August, some in early September. So that had an impact on all of this. And for instance, if we look at Delhi, Mall of India opened only around middle of October. And so, there are those kind of challenges. So that has an impact. If those stores had opened earlier, then our numbers in the north would also have been up. Now, are you saying that today the sales in malls are picking up? Yes, absolutely. Okay. So now I will come, Jagdish ji, with थोड़ा ये बताइए कि आप जो फर्निशिंग फैब्रिक्स और बेड एंड बाथ कैटेगरी है, कारपेट्स है, इसके अंदर which were the two best selling products? आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या वॉलपेपर्स हैं, इसमें which were the two best sellers? बेस्ट सेलर क्या है? बेस्ट सेलर एक कॉम्बिनेशन है ये एक्चुअली सारा रिटेल स्टोर के अंदर, बिकॉज इट इज जैसे सुलेमान भाई ने कहा कि भाई he is gone in the home style lifestyle, तो उसमें क्या इट इज ए मैटर ऑफ कॉम्बिनेशन कि आज कस्टमर किस कॉम्बिनेशन के अंदर माल को बाय करने में उसको सहूलियत है, उसके में हाउ कंफर्टेबल ही इज, बिकॉज एक स्टोर है जिसके अंदर जाके लाइफस्टाइल के हिसाब से आदमी माल बाय कर रहा है, एक स्टोर है जो सब्जेक्टिव स्टोर के ऊपर जाकर अपनी कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहा है. ये दो डिफरेंट एक एरियाज हैं ये. और तीसरा जो अभी बताया कि भाई अपने नीरज जी ने कि भाई उनका एक स्टोर है जो कि लिनन बेस्ड स्टोर है, तो इसमें सारे में एक्चुअली क्या है कि एक टाइम अब आ गया जिस तरीके से कि भाई जो आपका क्वेश्चन है ये कि भाई इसमें अगर हम मैं इस तरह से लेता हूँ तो मेरा लिनन और फर्निशिंग दो एक मेजर एरिया हैं जहां पर हम अच्छा करते हैं. दो कैटेगरी अच्छी है. Has this been a similar model? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा बैंगलोर में? Can you single out a couple of products? I will put it like this. If you look at the requirements, furnishing was the major factor of sale. Next was wallpaper. Okay. And third, you can count it rugs, carpets, bed linens. Okay. And Nirav, for you in Bombay, similar experience? See, I think Arun, if you ask this question at any point of time, जो furnishing मतलब जो fabric and wallpaper की जो billing size होती है, it's always higher than bed and bath. So in that sense, it doesn't. But if you were to compare, then definitely the pickup for bed and bath was very strong. What happened with furnishing was that a lot of sites that were actually stuck during lockdown, all of them opened up at the same time. I mean, construction was allowed, or the finishing work or painting or whatever was allowed back at the same time. So August, September, October was, the kind of supply for all of those. He says that he has not received. So the billing for furnishing, of course, all happened together. But that doesn't mean that that was the customer at that time. The new customer was definitely for bed and bath. Okay. And Hyderabad, Suleiman bhai, see, I would like to know especially from you, how was your sale in the hard goods, the decorative accessories and bed and bath? How do you compare? Because I know you sell wall clocks, you sell vases, you sell dinner sets, you sell cutlery, and you sell mattresses. Besides, you sell furnishing fabrics and bed and bath, which have been your stronghold always. So, आपका क्या experience रहा वहाँ पर? Which category did well? See, as rightly said by Nirav, always the biggest category would be furnishings, like curtains and upholstery and wallpapers put together, because that category is the biggest category in any furnishing store, if you take us also. But if you compare the category-wise sale from the last year's category-wise sale in Diwali
So bed and bath were the strongest. I would say bed and bath were the strongest performers. The growth that came in bed and bath, if you compare from last year to this year, was the biggest. Furnishing did same, wallpapers did same, but bed and bath was the star performer. If you compare the bed and bath sale to the last year's sale, and decoratives and accessories did same as we did in the last year. So the only category which saw jump as a comparative to the last year was bed and bath. So that includes everything: bed linen, bath linen, table linen, everything. So that was the star performer if you compare the last year's sale to this year's sale. And if you see volume wise, always furnishing will be the biggest volume in any of the furnishing store. Yeah. See, you are right. I think I have also been talking to some of the brands in bed and bath category and in furnishing fabric category. तो उससे निकल के यही आ रहा है कि बेड एंड बाथ की सेल काफी अच्छी हुई है ब्रांड्स की भी पैन इंडिया बेसिस पे. दैट हैज बीन देयर एक्सपीरियंस. लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 100% तक हमारी 100, 110, 120% also some of the brands have said has been the sale for them on all India basis. So probably this experience at retail level is also reflecting what the brands are saying. Yeah. So I think that notes are quite matching. लेकिन एक चीज जो बार बार हर डिस्कशन में आई है कि ऑनलाइन रिटेल हैज बीन the real issue with the offline retailers or with the standalone retailers. So how are we tackling this issue? Online retail का impact क्योंकि ये खास करके कोविड के पीरियड में जो 6 लॉकडाउन के पीरियड में consumers, I was told, got more used to buying online. You know, whether they're buying from Amazon or they're buying from Flipkart, and that is adversely affecting the sale. So what has been I personally have not been a great believer because still online retail is only 4% of the total retail sale in India. All the online players put together. And large format stores are still only 7 to 8% of the total sale, about 9% today. तो अभी भी मेरे हिसाब से तो 85% बिजनेस तो आप लोगों के हाथ में ही है. You know, जो the traditional retail या specialty retail या MBOs हम जिस नाम से भी बोलें. तो but what has been during this season, आप लोगों को ऐसा लगा कि कस्टमर शिफ्ट हो गया, आपके रेगुलर कस्टमर्स बहुत से जो नहीं आए during these 2-3 months period, या उनके फोन नहीं आए, या कोई मेथड में चेंज हुआ आपके सेल करने के? भाई साहब, जगदीश जी. इसमें क्या है कि जो हमारे जो इसका एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि जो कस्टमर आज मालूम मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मेरे पर नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर इन दिल्ली एंड सराउंडिंग्स, वो जो कस्टमर आता है वो इतनी क्वांटिटी में कि अगर कोई लौट के भी नहीं आए तो उसकी इतनी ज्यादा दिमाग में चिंता नहीं रहती, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर पर कस्टमर आया लेके चला गया, आपके पास रेगुलर आ रहा है. लेकिन जहां तक ऑनलाइन की बात है, ऑनलाइन इज ए नाउ ए डिफरेंट वर्टिकल, जो कि हर रिटेलर को इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि जो कस्टमर आपकी स्टोर से कहीं दूर है. आज सुलेमान भाई हैदराबाद में बैठे, अगर दिल्ली का आदमी अगर सुलेमान भाई से माल लेना चाहे, हाउ ही कैन बाय? द ओनली 2 थिंग्स, व्हाट इज द कैटलॉग्स, या उनकी अपनी वेबसाइट या ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू काम करेंगे. एक्चुअली आपको अक्रॉस इंडिया अगर काम करना है, यू वांट टू बिकम ए अक्रॉस प्लेयर ऑफ दिस. आई थिंक राजेश जी इस बात को थोड़ा आई थिंक ज्यादा बता रहेंगे. जब तक हमारे सारे फॉर्मेट हमारे साथ नहीं होंगे, सारे टूल नहीं होंगे, हमें आज टाइम आ गया है टू मेक योरसेल्फ एज ए ब्रांड. ब्रांड बनाने के लिए ब्रांड के लिए प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट बनाने के बाद सेल चाहिए आपको. आज आपको अगर ऑनलाइन काम करना है, मैं एज ए जगदीश स्टोर लेकर मैं मेस्पर का माल लेकर मैं रखता हूँ और मैं उसको ऑनलाइन करूँ, नेचुरली कस्टमर विल गो कि मेस्पर इज एक अलग कंपनी है, कि व्हाई नॉट आई गो थ्रू देम, बिकॉज कस्टमर का राइट है बार्गेन करना, उसका नियरेस्ट और बेस्ट रेट के ऊपर लेना उसका राइट है ये. तो हमें जब तक हम अपना ब्रांड एज ए रिटेलर, जितने भी हम रिटेलर्स हैं, वी हैव ए वेट ऑन आवर शोल्डर. आई मीन कि भाई हमें क्या सोचना है, फ्यूचर कैसे चलेगा,
क्या ये दूसरों अपने जो मैन्युफैक्चरर्स का जो ब्रांड आप लेकर काम करते रहेंगे तो इससे रिटेल पर कस्टमर आपके ऊपर कैसे बिलीव करेगा? वो तो एक बार आएगा चला जाएगा, लेकिन जो कस्टमर ब्रांड चाहता है कि भी ये इस शॉप पर अच्छा मिलता है या इस शॉप पे प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, वो कंटिन्यू कैसे रहेगा आपके साथ? एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो हम सबको फ्यूचर दिखाई दे रहा है, और फ्यूचर के अंदर आई थिंक ये सब रिटेलर्स के ऊपर बहुत बड़ा एक ये है कि हम उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप करें, उस अपने लिए प्रोडक्ट डेवलप करें, अपने डिजाइनर्स के साथ बैठ के उनको काम करें, अपनी किचन वर्क अपने को काम करना शुरू करें, सो दैट कि हाउ यू कैन मेक श्योर कि योर कस्टमर शुड रिटेन विद यू, कैसे आपके साथ रहे। You cannot become, we know कि we can become Amazon also, कि Amazon ने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया, सारे होलसेलर, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर जो भी आना चाहिए उस पर आइए, माल बेचिए, तो Amazon बिक रहा है, तो Amazon become a brand now। लेकिन आप एज ए रिटेलर अगर करें तो नाउ द टाइम हैज कम नाउ कि जैसे आज होम स्टोर खुला है या होम एट होम खुला है या हमारे IKEA खुला हुआ है, तो दे आर नाउ नोन एज ए ब्रांड। तो हमें आई थिंक नाउ देयर इज अ चैलेंज फॉर आवर रिटेलर्स टू थिंक ऑन दोज लाइन कि मैं अपने ब्रांड सब ब्रांड को कैसे डेवलप करूं, और उनके लिए जो क्वालिटी कस्टमर को माल को देना है वो मैं कैसे कलेक्ट करूं, और उसको कस्टमर को कैसे सर्विस दे सकूं। आज मुझे एक कस्टमर मैं मांगता, सॉरी आपकी बात बीच में आपको रोक रहा हूँ, एक कस्टमर मांगता है कि मुझको एक बेडशीट दीजिए जो 600 TC की है या 400 TC की है या 800 TC की है। मेरा मैन्युफैक्चरर के पास है ही नहीं वो माल, उसके पास सोच ही नहीं है उसके पास। वो अभी सोच रहा है कि मेरा 200 TC का या 300 TC का माल ज्यादा बिकता है, मैं उसी पे लगा रहा हूँ। बेडशीट की बात, लिनन की बात कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए मैं। तो अगर उससे ज्यादा का कस्टमर माल मांगता है तो कहाँ से लेगा वो? क्या वो मैन्युफैक्चरर के साथ, उस ब्रांड के साथ ही रहेगा? आपने बॉम्बे डाइंग को भी देखा है, आपके पास और भी काफी ब्रांड्स हैं जो सामने देख रहे हैं। हर ब्रांड एक मार्केट, उनको देख रहे हैं कि हमारा 999 का माल बिकेगा, 199 का बिकेगा या 299 का ज्यादा माल बिकेगा, वो उस फॉर्मेट को देखते हैं। लेकिन एक क्वालिटी कस्टमर जो है मांगता है। मेरे पास एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मिस्टर नेस वाडिया मेरे पास शोरूम पर, उन्होंने आगे ऐसी बात करी, मैंने कहा नेस जी यदि 5 to 5 525 क्वालिटी बना रहे हैं आप, इससे यू डोंट हैव बेटर क्वालिटी देन। तो बोले बिकती है क्या? तो मैंने कहा अच्छा चलिए मुझे एक एग्जांपल बताइए, अगर आपको लेनी हो तो कहां से लेते हैं? बोले यस दिस इज द क्वेश्चन आंसर। तो मैंने कहा इसमें ये क्वेश्चन भी है आंसर भी है कि क्वालिटी कस्टमर, आपको ध्यान होगा एक बार SGS का आपने कॉन्फ्रेंस रखी थी पहले बिगनिंग के अंदर, तो आपके काफी सेंचुरी मिल से भी और आलोक इंडस्ट्री से सभी लोग आए हुए थे। तो मैंने सेंचुरी मिल वाले थे, उन्होंने अपनी बात बता रहे थे कि हमें माल बेचने के लिए जाना पड़ता है बाहर, और अटैचियां लेके बाहर बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है टू द टारगेट वगैरह, बड़े बड़े स्टोर्स के बाहर जाके बैठना पड़ता है। तो मैंने कहा आप उनके जाके बैठते हो, जो हमारे पास जो रिटेलर्स इंडिया के अंदर हैं उनको जो क्वालिटीज चाहिए वो आप क्यों नहीं देते? तो जैसे आपका ब्रेक हुआ, उससे लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में जब मिले तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को कहा भाई साहब मेरे को बताओ कौन सा माल चाहिए आपको। तो मैंने कहा कौन सा माल चाहिए बताइए। तो बोले, मैंने कहा आप माल देते कहाँ हैं? तो बोले नहीं आपके पास, अब बताइए मैं कब आ जाऊंगा। द MD ऑफ द कंपनी, मार्केटिंग डायरेक्टर, वो उन्होंने आदमी मेरे पास भेजा, उन्होंने सैंपल लेके भेजे, उन्होंने कहा, उन्होंने रेट बताया किसी एक क्वालिटी के कि भाई ये रेट आपको 185 रुपए मीटर मिलेगा। तो मेरी वाइफ मेरे साथ काम करती है बेडशीट लेने के अंदर, उन्होंने कहा ये तो बहुत महंगा है। तो उसने बोले आप एक तो बताइए कितना माल चाहिए वो लिख दीजिए इसके ऊपर, और क्या प्राइस सूट करती है वो लिख दीजिए। तो हमने कहा नहीं प्राइस आप बताइए क्या कम कर सकते हैं? बोले नहीं आप प्राइस लिख दीजिए। माय पॉइंट इज कि उन्होंने 185 को 158 लिख दिया, 158 में मुझे माल आ गया। माय पॉइंट इज कि ब्रांड को क्वालिटी ले, कस्टमर क्वालिटी बहुत मांग रहे हैं। व्हाट आप जो कह रहे हैं कि इंडियन कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, we need to get better products in the store. Yes, better product अवेलेबल नहीं है, और हैं तो वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में नहीं दे रहे माल। ये कमी शायद मैन्युफैक्चरर्स या ब्रांड्स के लेवल पे। डू यू एग्री दिस राजेश जी? इज इट हैपनिंग लाइक दैट? व्हाट इज योर, आप तो क्वालिटी के भी मास्टर है, डिजाइन के भी मास्टर है, और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जगदीश जी जो कह रहे हैं वो सारे पॉइंट्स में आप फिट हो रहे हैं, और आप अच्छी क्वालिटी भी बना रहे हैं, और आप कमर्शियल क्वालिटी भी जरूर बना रहे होंगे। तो हाउ डू यू आंसर जगदीश?
एज अ ब्रांड वी सर्विस हर टियर को सर्विस करते हैं. हमारे पास प्राइस पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम जो जगदीश जी कह रहे हैं ना कि 999 पे तो मेरे पास है कुछ नहीं, पर 1999, 2999 और 8,000 रुपए तक की तो बेडशीट बेचते हैं. सो हमारे पास लेवल तो सारे हैं. और अपना कहते हैं हमारे को वो चैलेंज, हमारे पास वो चैलेंज नहीं है. हमारी एक चैलेंज जरूर है. हमारी वी हैव वन चैलेंज एज अ ब्रांड कि कई बार जो है ना माल इतना बढ़िया बन जाता है कि कस्टमर्स को फेंकता नहीं, वापस नहीं आता. वो बड़ी समस्या है. आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट, जगदीश जी की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं आपसे कि आप क्या थ्रेड काउंट हाईएस्ट क्या बना रहे हैं? नहीं, हम आज की तारीख में हम 400 से ऊपर नहीं बेचते. बिकॉज ज़रूर है कि 600-800 की भी डिमांड है, पर हम सोचते हैं कि वो थोड़ा हमारी नज़र में थोड़ी लिमिटेड है. पर डेफिनेटली जैसे जगदीश जी की शॉप है या नीरव की शॉप है, मैं अपना महावीर जी के यहाँ तो नहीं देखा और सुलेमान भाई की दुकान भी नहीं देखी मैंने. तो अपना हर कस्टमर के अंदर जो क्वांटिटीज हैं, अब हमारे एज अ मैन्युफैक्चरर हम अपना कपड़ा लेके बनाते हैं. वी डोंट वीव फैब्रिक और एनीथिंग. तो उसके लिए हमारे जो एमओक्यूज वगैरह आते हैं, हम अपने आप को वहाँ अपना रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि हम भी वो चीज़ बेचें जो हमारा पूरा वॉल्यूम में बिक जाए. ओके, so that means to some extent you are in agreement. जो जगदीश जी बात कर रहे हैं कि हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर थोड़ा सेफ ही प्ले कर रहा है. And नहीं, आई डिसएग्री विद दैट पॉइंट. वो प्ले नहीं कर रहा. वो उनके पास जो लोग अपना ऊपर से नीचे तक सब कुछ खुद बनाते हैं, हम खुद नहीं बनाते हर चीज. So when it comes to that, we are a converter. We buy and we process and we manufacture, convert. तो अगर मिल वीविंग है, अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं, जब मैंने स्टार्ट करा और कहा कि थोड़ा डाइग्रेस करता हूं कि टॉवल्स हम नहीं बनाते थे. सो व्हेन वी स्टार्टेड आउट 18 इयर्स अगो, हमने कहा होम स्टोर खोलेंगे और तौलिया नहीं रखेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा. तो हम गए तौलिया वालों के पास, तो उन्होंने कहा कि भाई मिनिमम 1 टन 1 पर कलर पर साइज जो लेना है. हमने कहा एक दुकान में हम कहाँ बेचेंगे. तो फिर हमने एक टन ग्रे खरीदा, अपनी मशीनें लगाई, अपने 10 कलर बनाए और फिर मार्केट में लेके आए. तो टुडे सम ऑफ द क्वालिटीज वी मैन्युफैक्चर, हम उसी जिसे हम ग्रे लेते हैं, हमने कहा यार तू ही बना दे. वो कहता है आपकी क्वालिटी हम नहीं बना सकते. सो वी मेक दैट क्वालिटी आवरसेल्व्स. वी ग्रे वही लेते हैं, प्रोसेस अपने आप करते हैं. सो दोज आर द इश्यूज. हमें जब ग्रे लेना चाहिए, अगर मैं बोलूं जी मुझे 1000 TC का ग्रे चाहिए, तो वो मिनिमम इतना ज्यादा देते हैं कि उसको बेचने में बड़ा समय लगता है. Okay. I think I will come back to our discussion on Diwali sale because that is what I think our focus is today. Suleiman bhai, how do you think do you notice any change in the buying behavior after lockdown in the consumers' buying pattern? And if what change you noticed, either in terms of brands or in terms of price points or in terms of choice of colors and designs, they wanted to feel different कि वही सब रहा जैसा हमेशा रहता है. There was not a very big shift in the buying pattern. If you see the colors, the design, the choice is the same. The choice has remained the same. They need good quality. But the major shift I noticed was they wanted a good quality at a very attractive price point, right? So they wanted everything for value for money. So there are a lot of pressure on prices, would you say? A lot of pressure on prices, lot of pressure on discounting. And because they felt that post-COVID, they were the kings, because the consumer was the king, because grahak hai ka market mein. So they said when we are coming here to spend, we should get value for money. So there was a lot of pressure on value for money, and they wanted everything on a good price point, and they wanted more things in the same amount of spend. So did you have to concede to that pressure as a retailer? Yes, definitely we had to make the customers happy. We had to give them very good, attractive offers to buy.
and that helped us a lot because people wanted more in the same amount of money. Mahavir, did you notice any change in the buying behavior in Bangalore? Choice of brands, brand जो typically बिकते हैं वही leading brand रहे या कुछ change आया या unbranded products? नहीं, बिके तो वही है जो पहले बिकते थे. The only shift ये हुआ है कि पॉकेट साइज कम हुआ, reduced. लोगों का अगर समझ लीजिए कि 5 लाख का जहाँ उनका बजट था, they shifted to 3.5 lakhs. It was not that they don't want to spend, but they were little cautious. Looking at the scenario of pandemic, what will be the future, why we should spend more. And the best part of all this in this pandemic, what we have understood is the customer who walked in or who inquired, they, I would say that 80% they decided to buy with us. In fact, you preempted my question. मैं ये सवाल पूछने वाला था कि conversion ratio क्या रहा? So I would put it 80%. 80. Meera, what I will tell you that discount part में भी जो है हमारा reduction हुआ. हमने discount कम किया देना, क्योंकि customer was not ready to visit many shops. तो ये अगर एक डिसाइड करके आया और स्टोर पे जाके फाइनल कर दिया. So you used it as an advantage, huh? It was not an advantage. We see our expenses became more. In this pandemic. हमारे जो है सब खर्चे भी बढ़ गए, काफी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ा. The layers used to go with जो अभी wallpaper layers, the जो cut and tail, these measurements वाले सबको हमने बहुत सी चीजें हमने उनको प्रोवाइड की. सब जाते थे, सबको बहुत अलग ढंग से हमने ट्रीट किया. वी पुट नंबर ऑफ विजिट्स हमारी रिस्ट्रिक्ट की. तो ये सब चीजें थोड़े खर्चे भी बढ़े, तो डिस्काउंट भी हमारा जो है जो आगे फॉरवर्ड करना था वो कम हो. नीरव, मुझे थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है बात में. एक तरफ हम ये बोल रहे हैं कि लोग डिस्काउंट मांग रहे थे, दूसरी तरफ हम ये बोल रहे हैं कि कन्वर्शन रेशियो वाज 80%. और सो and people are sticking to their own choices. तीसरी बार ये हम बोल रहे हैं कि फील गुड फैक्टर सब चाह रहे थे कि अपने घर को रिनोवेट करना. So I mean this, and चौथी चीज की everybody was comparing prices with the online retail prices, which is always heavily discounting. So how I mean this is to me a little bit unexplainable कि 80% लोग अगर convert हो रहे हैं, फिर डिस्काउंट की जरूरत होनी ही क्यों चाहिए? That means they have come to buy. Correct. What was your experience? नहीं, so we found more people asking for discount. मतलब ऐसे customers जो कभी भी पूछते नहीं थे, वो एक बार try जरूर किया है, because everybody thought के सामने क्यों भी they need it. एक मौके का फायदा उठाना है, but it's not necessary that we gave it. So we have always been a no discounting store and we continued that policy. My simple question to in fact all the panelists is that did you actually lose sale because you refused to give discount? No, I didn't. No. Did a customer walk out because you said मैं तो 20% discount नहीं दे सकता? We never allow customer to walk out because of the discount. आप डिस्काउंट भी नहीं देंगे तो आपने पकड़ के थोड़ी रखा होगा कस्टमर को. क्या है, कस्टमर का एटीट्यूड चेंज. He never wanted to visit another store. वो घर से मन बना के आया, भैया ये अभी इतना प्रॉब्लम चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक है, तो I restrict myself to one store. He decided at home where to go. Because this is a very good point Mahavir ji has said, that customer is reluctant to get into more number of stores because वो ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता था. So ये तो एडवांटेज का पॉइंट हुआ from the retailer's perspective. Yes, of course. तो आपका क्या एक्सपीरियंस, जगदीश भाई साहब, आपको क्या लगता है, ऐसा सेल टूटी डिस्काउंट रिफ्यूज करने की वजह से? नहीं, सेल मतलब एक बात जो भी महावीर जी ने बड़ी अच्छी बात की, कस्टमर का वापसी जाने का तो टाइम खत्म हो गया ना, बिकॉज you require customers now. एंड जहां तक ऑफर की बात है, अब वो एक ऑफर जो है, बिकॉज एक
प्राइस के साथ एक ऑफर का एक जैसे कहा जाए दाल के साथ रोटी के साथ दाल फ्री है, वो अब एक सिस्टम बन गया है कि डिस्काउंट नाउ अब जितने भी जो बड़े फॉर्मेट स्टोर्स हैं उन पर डिस्काउंट का एक लेवल लगना शुरू हो गया है कि भी एक के साथ दो फ्री हैं या दो के साथ एक फ्री है। तो ये एक फ्री का और जो डिस्काउंट का जो पैटर्न है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, और कस्टमर जो है डिस्काउंट जहां भी मांगने, अब तो ये मांग रहे हैं कोविड डिस्काउंट क्या है इस बार तो ये कोविड डिस्काउंट या कोविड डिस्काउंट एक नया एक क्वेश्चन शुरू हुआ इस बार तो ये, और बड़ा अच्छा लगा कि कोविड डिस्काउंट भी एक डिस्काउंट है जिसको भी हमें ये लगता है 2-3 साल अभी इसको ये जिंदा रहेगा हमारे साथ में और हमें इसको समझना है। लेकिन एक बात जरूर है कि ऑनलाइन बिजनेस कस्टमर जो है, मैं हमारी वेबसाइट हमने लॉन्च की हुई है, वेबसाइट पर मैं देख रहा हूँ कि कस्टमर्स माल को फैब्रिक जो हम समझते थे कि नहीं बाई कर रहे हो, फैब्रिक भी बाई कर रहे हैं और उसको सर्विस करने का, दूसरा करने का, बिकॉज इज अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस। जो कस्टमर आपके ब्रांड के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ऑनलाइन का काम आपको जरूर शुरू करना पड़ेगा, हर शॉपकीपर को करना पड़ेगा शुरू, और अपने ब्रांड को अपने उसके साथ लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जितने भी नए फॉर्मेट स्टोर, जितने भी स्टोर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली कंज्यूमर को हैंडल नहीं कर रहा है आज की तारीख में। तो जो भी कस्टमर को अगर वो हैंडल नहीं कर रहा है, वेबसाइट के थ्रू हैंडल कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा रिटेलर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कस्टमर इधर बेडशीट देख रहे हैं, उसके पीछे अगर बॉम्बे का नाम लिखा है या ट्राइडेंट का नाम लिखा हुआ है तो उसके पीछे नाम से फटाफट वो क्या कर रहे हैं, अब ये रेट तो ये है, ये हमें इतना डिस्काउंट तुम्हारी ऑफर है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं। तो मतलब ये कि आज की तारीख में आपको इन सब चीजों को बचाने के लिए, अगर फ्यूचर के लिए रिटेल को बचाने के लिए आपको अपने ब्रांड पर आना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट माय thought and experience now at this time moment. So you mean a retailer has to become a brand by itself? Brand itself, yeah, it has to one day. Because अगर वो नहीं करेगा तो he will finish one day. क्योंकि अगर वो ब्रांड का, जितने ब्रांड का माल रख रहा है, सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, सारे ब्रांड डायरेक्टली कंज्यूमर पे अवेलेबल है। जो कस्टमर इधर रेट, आपने कोई रेट अगर मान लो किसी प्रॉफिट की वजह से कहीं चेंज भी कर दिया कहीं किसी जगह, कस्टमर अरे क्या बात है, ये इस रेट पे तो ये देखिए रेट दिखा रहा, आप कैसे रेट चार्ज कर रहे हैं, इतना तो डिस्काउंट वो उस पे वेबसाइट पे दे रहे हैं, आप हमें दे ही नहीं रहे कुछ। इस पे मैट्रेस के ऊपर 4 तो पिलो वो ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि रिटेलर को अपना खुद का सर्विस स्टैंडर्ड एक क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी किचन क्रिएट करनी पड़ेगी, इमेज एक क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। सो इनोवेशन के लिए एक अपना जो स्टूडियो बनाते हैं ना, डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है काम, वो एज ए रिटेलर को अब आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई रास्ता नहीं है। एंड ही शुड इन्वेस्ट इन ब्रांडिंग, अपने प्रेजेंटेशन को उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जो भी कस्टमर माल बाय कर रहा है, किसी आर्किटेक्ट पर जाते हैं, एक डिस्काउंट हमारी लाइन के अंदर, फर्निशिंग के अंदर आर्किटेक्ट बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा हमारा एक मीडियम एक है माल बेचने, एंड दे टेक लॉट ऑफ बिग गुड कमीशंस, एंड विदाउट कमीशन वो काम नहीं होता बिल्कुल। और वो कमीशन किस लेवल तक, आज एक रिटेलर, एक होलसेलर है, मुझे माल दे रहा है और वो ऑलरेडी माल बेच रहा है, जो मुझे मार्जिन दे रहा है उस मार्जिन के ऊपर, उसके ऊपर से पार्ट तो पहले कर देता है उसको। तो मेरे पास कस्टमर आगे कहता है यार ये तो इतना तो मुझे वो ब्रांड दे रहा है, आप क्या दे रहे हैं। वो दैट इज ए बिग चैलेंज जो हम सब एज ए रिटेलर, फर्निशिंग की बात कर रहा हूँ, बेडशीट में भी बात देखते हैं अपने। तो ये सब चीजें जहां ब्रांड है वहां ये प्रॉब्लम्स आने जा रही है, और इट इज नाउ ग्रोइंग, और ये बहुत बड़े कस्टमर को करने में, जो कस्टमर को पूरा। मैं इस पे कुछ बोलूं? हाँ प्लीज बोलिए राजेश जी। आई थिंक जो लोग डिफरेंट चैनल्स पे या डिफरेंट वर्टिकल्स पे प्रेजेंट हैं, हाँ जी, अगर उनको कामयाब होना है और उनको अपने सभी वर्टिकल्स को मेंटेन करना है, तो एक मर्चेंडाइज स्ट्रैटेजी ब्रांड को बनानी पड़ेगी। यस। ये नहीं है कि जो मैं इंडिपेंडेंट रिटेलर एमबीओ को बेच रहा हूँ वही मैं मार्केट प्लेस में डाल दूं।
जिस Absolutely. ब्रांड ने ये करा वो आज भी नहीं और कल भी नहीं। तो अगर हम जैसे हम हैं, जो हम मार्केट प्लेस में डालते हैं वो हम एमबीओ में नहीं लाते, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट आपस में ना हो। आप ये कह रहे हैं प्रोडक्ट ही अलग है वो, तो प्रोडक्ट अलग रहेगा, पैटर्न्स अलग रहेंगे, क्वालिटीज अलग रहेंगी। क्योंकि हमें मालूम, पहले हम ऑनलाइन नहीं करते थे। जब मैंने एक ऑनलाइन स्टार्ट करा तो जिस बिजनेस हेड को मैं लाया वो हमेशा मेरे से डिस्काउंट 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 की बात ही करता रहता था कि डिस्काउंट के बगैर माल नहीं बिकेगा। तो मैंने उसका नाम ही डिस्काउंट, मिस्टर डिस्काउंट डाल दिया था। अल्टीमेटली अगर आज की तारीख में हम लोग डिसकंटिन्यूड मर्चेंडाइज जो हम 1-2 सीजन पुरानी है वो तो हम डाल देंगे मार्केट प्लेस में, पर उस टाइम वो इंडिपेंडेंट रिटेलर या एमबीओ पे नहीं होगी। दे विल हैव, वो बेच के उसको निकल चुके होंगे, तो वो कंपैरिजन नहीं आ सकता। हम कनाडा में भी करते हैं काम। वी हैव आवर ऑपरेशन इन कनाडा वेयर वी सेल टू इंडिपेंडेंट्स आल्सो इन लार्ज फॉर्मेट एंड वेबसाइट। तो हमारा मर्चेंडाइज अलग रहेगा। अनलेस मर्चेंडाइज डिफरेंशिएशन होगी तो ये प्रॉब्लम रहेगी। और ब्रांड्स को भी रिटेलर्स के साथ मिलके चलना पड़ेगा, एक ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी बने। आप सबको लेके चलेंगे तो आप चल पाएंगे, नहीं तो आप नहीं चल पाएंगे। बट एज अ ब्रांड मैं बोल रहा हूँ। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और राजेश जी, आई थिंक आपकी जो बात आपने कही, अगर ये स्ट्रेटेजी अगर रहती है तो ही बात समझ में आती है, अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अभी मैं आपको एक इंटरनेशनल ब्रांड की बात बताता हूँ। मेरे कस्टमर के साथ सारा काम हो गया, सारी बातचीत हो गई, सारा उसने सेलेक्ट कर लिया, मैंने अपनी प्राइस दे दी, वी हैव गिवन द ऑफर डिस्काउंट आल्सो। वेरी वेरी लाइव एक्सपीरियंस में अभी बता रहा हूँ। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस कस्टमर ने जाके उसको वेबसाइट खोली और ही गॉन टू दैट एरिया। वहां जाने के बाद देखा क्या कि जब उसने कस्टमर वो जो माल जो रेट मैं दे रहा हूँ उससे काफी कम में रेट पे, तो वो इंटरनेशनल ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं, वो बेच रहा है। तो दे रहे हैं। एक चीज तो बता, आप माल बाई करिए, उसे बाई करने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो रेट है मेरे लंदन तक के हैं, यूरोप तक के, इसके बाद आगे की ना डिलीवरी में दूंगा ना मैं माल बेचूंगा उससे। देन कस्टमर घूम के फिर मेरे पास आया, मेरे पास बोले ये ऐसे। मैंने कहा देखो, मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, मेरे को आखिर मुझको ये करना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ा कि ये प्राइस में तो मुझे आ रहा है, जिस प्राइस में तुम्हें वहां से ऑफर हो रहा है उससे ज्यादा प्राइस में तो मुझे मिल रहा है, माल मेरे लैंड कर रहा है। एक चीज बताइए आप लोग, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज टू एनीबॉडी who would like to, especially Nirav, you have been doing, and Sulaiman bhai, you've been doing a lot of premium products, and I think महावीर जी आप भी कर रहे हैं। आप लोगों का इस पीरियड में प्रीमियम प्रोडक्ट्स का, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है, उनका शेयर रिड्यूस हुआ क्या? Have you actually did better than expected? Have you reduced the shelf space for the luxury brands, luxury products, and you have brought in more mass market or more economical products on the shelves? No, it's actually the other way around. जो जगदीश अंकल बोल रहे थे ना, the value of the brand, of the store also, and of the product itself is right now much stronger than ever before, because the customer doesn't want to spend time at the store. Yeah, online, yeah, whichever channel he's on, he doesn't want to spend time on that channel. So एक or the brand you trust the most or you want the most. So in fact, price has now become secondary and the brand has become more dominant in the decision making. So premium brands actually did better than for us than regular brands. In fact, one of the listener is asking, one of the audience, the question has come that Jagdish Bhai Sahab, probably you will be the right person to answer this. Is it a good time to open a new furnishing store? Yes, it is always better. Yes, good furnishing store, but in what manner, what size? This is a. But in principle, one can consider that project. Yes, can consider. Yes, yes. बाकी तो फिर उनको आपसे मिलके बात करनी पड़ेगी। नहीं, they can come to me. Welcome, बिल्कुल welcome. Okay, so I think एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि आप लोगों की, we have discussed कि what happened, लेकिन I am sure each one of us must have faced some major challenges during this 3 months of sale. तो आप लोग शेयर करेंगे एक
challenge जो आपको सबसे बड़ा which you could not overcome and one challenge which you could overcome and how did you do that? महावीर जी? ऐसा है कि जब कस्टमर आता है, वो कोई फाइनलाइज करता है, तो हमें किसी न किसी को उसके घर पे भेजना पड़ता था मेजरमेंट के लिए, फिक्सिंग के लिए, वॉलपेपर लगाने के लिए. दैट वाज ए वेरी बिग चैलेंज. ओके. अगर जैसे अपार्टमेंट है तो बाहर के आदमी को अंदर नहीं छोड़ते थे, अलाउ नहीं करते थे सोसाइटी उनको अंदर जाने के लिए. तो ये सब बहुत बड़े चैलेंज थे. तो उनको दैट फ्लैट से वो गाड़ी लेके बाहर आते थे, अंदर लाइनर को बिठाते थे, वो अंदर लेके जाते थे. तो ये सब इश्यूज थे. और लाइनर जा रहा है, उसकी हाउ सेफ इज, ये सब बहुत बड़ा इश्यू था जो हमको बहुत मुश्किल से कन्विंस करके, कस्टमर को कन्विंस करके, लाइनर को बोला भैया नहा के आ, रोज शेव करके आ, सैनिटाइजर साथ में रख, मास्क साथ में रख, 2-3 एक्स्ट्रा अपने जेब में डाल दे, हैंड ग्लोव्स रख, एक बार एक विजिट से बाहर आता है, हैंड ग्लोव्स को डिस्पोज कर, नया पहन ले. तो ये सब चीजें जो है हमने हमारी तरफ से बहुत की, मगर ये बहुत बड़ा चैलेंज था. किसी के घर में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था. Sulaiman bhai, what was your experience in Hyderabad? I'm sure some of the challenges which you overcame. Yeah, the initial challenges after the lockdown were same as Mahavir ji said, because we had to take a lot of precautions in our team and assure the customer. And as Dhirav said, that the brand awareness in our own area was the main important thing for the customer to make a decision to come to us. Right, so that I agree with him, because the customer went only to those places where they felt that it is safe and it is even recognized brand in their area. That was the utmost important. And the challenge that we faced was to keep our team updated and upgraded to the new challenge, to understand the nitty-gritties of the prevailing situations. Because as we saw, there were a lot of challenges which Hyderabad had during the month of October with the heavy rains. There was a heavy downpour, like it was like a cyclone kind of a condition. So in that kind of conditions, having the teams together, having the showrooms intact, that was a major challenge. And we were able to overcome that by a lot of education to the team, lot of hand holding, and a lot of awareness among the team. Because if you see, it was on the national news that October there was a heavy the rainfall which Hyderabad had never seen. So that was a major challenge that we all faced in the month of October. Yeah. Okay. Achha, Neera, how are you going to change now? See, now let us move forward from where we are today. If we look at the next 6 months, from based on this experience that we have had in last 3 months, तो आपको क्या लगता है? How do you think the time between December and say June going to be, or December and March going to be? See, I mean, assuming that there is no major wave of COVID or any major lockdowns, I think this growth should be sustainable. मतलब अगर कोई लॉकडाउन या वो आ गया तो वो अलग बात है. Other than that, sustainable होना चाहिए. लेकिन मैं नियर लॉन्ग रन और लॉन्ग रन में ये जरूर कहूंगा कि we have learned to work a little differently, all of us. सबसे बड़ी problem this season has been supply. Because I think a lot of the vendors, manufacturers, wholesalers were not geared, equipped. किसी को स्टाफ का प्रॉब्लम था, किसी के घर पे कोविड था, किसी ने सोचा ही नहीं था कितनी डिमांड निकलेगी. There was a lot of shortages. But we all learned to work around it. WhatsApp पे फोटोग्राफ मंगा के फिर क्लाइंट को भेजा, वो ये हुआ, वो ऑर्डर सिक्योर हो गया. तो एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि कम स्टॉक पे वी कैन मैनेज. सो इफ वी ऑल एज एन इंडस्ट्री invest in that end-to-end working, from the manufacturer to the wholesaler to the retailer, that we have access to e-catalogs, there is a centralized stocking या whatever. अगर वो streamline कर सके ना, तो जी हर साल जो हम लोग के stock में जो losses हो रहे हैं, dead stocks and all those things, we can minimize it at all levels. And what that would do is it would increase profitability and liquidity for everybody.
तो ये जो नीरव कह रहे हैं जगदीश जी, मैं जो समझ रहा हूँ कि sourcing is going to be a big revised strategy now, Yes. or needs to become a revised strategy. Either to reduce dead stock, you can manage with lesser stocks. So आपको लगता है ये बात कुछ हद तक सही है, मतलब कि सोर्सिंग में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे रिटेलर को, या आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है? नहीं, सोर्सेस में तो आपकी अपनी टीम है जो सोर्सिंग पे अगर सेपरेटली लगी हुई है और चेक कर रही है, बिकॉज नाउ टाइम है कि हमें रिटेलर्स को नाउ हमारे पास जितने भी वो स्टेट्स हैं उनकी जो हर अलग स्टेट की एक अलग एक कारीगरी है, उसकी एक डिजाइनिंग है। लाइक बिहार का है तो इधर उड़ीसा का है, कर्नाटक की, जो उनके जो आर्ट है, उनके डिजाइन है, उनको अपने अपने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने का टाइम आ गया ना। हमें जो इंडिया का जो अपना कल्चर चारों तरफ जो फैला हुआ है, वो उसको इकट्ठा करके, उसके आर्ट को इकट्ठा करके हमें अपने बेड लिनन में, फर्निशिंग के अंदर, क्रॉकरी के अंदर, किसी में भी उसको लेके आना चाहिए। बिकॉज नाउ जो बाहर का जो कस्टमर आता है, फॉरेनर जो आता है, वो फॉरेन का कपड़ा नहीं देखना चाहता, वो इंडियन चीज को देखना चाहता है, इंडियन स्ट्रेटेजी देखना चाहता है, इंडियन आर्ट देखना। उसके लिए नाउ टाइम है कि हमें इंडिया के हर कॉर्नर को चेक करना चाहिए और इंडिया के आर्ट को ढूंढ के अपने स्टोर्स पर डेवलप करना चाहिए। ये एक एरिया है जहाँ बहुत बड़ा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। और जैसे मोदी जी ने भी कहा भी अपने यहाँ लोकल को वोकल बनाया जाए। आई थिंक नाउ वी शुड लुक टू द आर्ट। नाउ आर्ट हैज टू कम, बिकॉज ना मिले अपना फर्निशिंग, फैब्रिक वगैरह, बेडशीट बना रही है, अपने मन से बना रही है, बट एज ए रिटेलर माय फोकस शुड बी ऑन नाउ टू द इंडियन आर्ट, वेयर द इंडियन आर्ट एंड हाउ आई कैन कन्वर्ट दैट इंडियन आर्ट टू माय वर्क। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट 6 महीने का आउटलुक क्या है जगदीश जी? 6 महीने का ये डिपेंड करता है अपने हमारे केजरीवाल जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर सारा, कि कंट्री कहाँ बंद होता है, कभी खुलता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी डेथ रेट बढ़ जाती है, तो कभी कुछ हो जाता है। तो देखिए वो तो होता रहेगा, बट कंसीडरिंग इवन डिस्पाइट ऑल दिस, हाँ जी, हाँ जी, हाउ डू यू सी, मतलब हम तो लॉकडाउन से निकले फिर भी दिवाली सेल अच्छी ही रही। हाँ, दिवाली सेल अच्छी रही। लोगों ने इकट्ठे होकर देख लिया ना, घर कपड़ा खराब हो रहा है, हस्बैंड वाइफ तो कभी डिसीजन नहीं ले पाते थे, वाइफ अलग से आती था, वो इकट्ठे मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। आप लोग ये इस चीज को बिलीव करते हैं कि होम इंडस्ट्री आज के दिन वहां खड़ी है जहां पे 1990 में या 85 में अपैरल इंडस्ट्री खड़ी थी? इट इज ऑल रेडी टू टेक ऑफ विद लॉट ऑफ ब्रांड्स, लॉट ऑफ स्टाइल, लॉट ऑफ फैशन। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज़ नाउ दिस टाइम हैज कम, टाइम हैज कम। So do you expect lot of brands to come in the market? Do you expect lot of variety of products? Because मैं जो समझ पाया हूँ लोगों से बात करने में, कि कंज्यूमर से हमने बहुत लोगों से, we have spoken to thousands of people, कि ये जो सेल हुई है दिवाली में, इसके मेन 3 कारण है। कि एक तो लोग घरों में बैठ के शायद पहली बार लोगों ने अपने अपने घरों को ठीक से देखा है, ये 6 महीने में उतनी ठीक से देखा है जो पिछले 10 साल में नहीं देखा। यू नो, दूसरी चीज, लोग अपने घरों में, उनको ये भी पता चल गया अब घर में ज्यादा रहना है तो घर को इम्प्रूव करना है। होम इम्प्रूवमेंट हैज बिकम अ बिग एजेंडा। नहीं तो मेन को तो प्रॉब्लम, मेन ने तो कभी घर देखा ही नहीं था, लेडीज पे छोड़ रखा था सारा काम। और लेडीज में भी तो वर्किंग वुमेन है, वो भी वो मेन के बराबरी में ही थी, तो इसलिए घर को देखेगा कौन। सो ये एक शायद एक बड़ा फैक्टर है जो विच इज सीरियसली ड्राइविंग द डिमांड, कि लोगों को समझ में आया कि घर की इंपॉर्टेंस हम सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा, ये सराय नहीं है, ये घर है। So, एक ये फैक्टर है। दूसरा ये कि भाई लोग शायद 6 महीने में दिन में 4 बार घर में ही बैठ के खाना खाने से उनको शायद बोरियत भी हो गई। दे वांटेड अ चेंज, भले वो बेडशीट में है, कर्टन में है, कुशन कवर्स में है, बिकॉज सराउंडिंग उनकी अब खाली घर ही है। तो इसलिए वो फ्रीक्वेंट चेंजेस, फ्रीक्वेंट बाइंग जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, वो अब यहाँ पे एक परमानेंट फीचर शायद हो जाएगा। तो
फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं एक हमारे मित्र से बात कर रहा था टेरी टॉवल इंडस्ट्री में, बोले हिंदुस्तान में बेचे कैसे, तौलिया इंसान 8 साल में एक बार बदलता है यहाँ। तो मैं कुछ भी कर लूं तो 8 साल में, जब तक वो 8 साल का 2 साल में या 1 साल में नहीं बदलेगा, तब तक मेरे तौलिए तो बिक ही नहीं सकते। डिजाइन का इससे और प्राइस का इससे कोई लेना देना ही नहीं। सो इट इज मोर ऑफ द कंजम्पशन हैबिट। तो वो इसमें आपकी बात काट रहा हूँ, अगर वो जो मैन्युफैक्चरर जिसने आपसे बात कही, अगर वो नए स्टाइल, नए कलर्स, नए डिजाइन देता है तो आई थिंक उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। बट भाई साहब, प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमर तो बोलता है मैंने अभी तो लास्ट ईयर लिया था तौलिया, तो वो आपसे तौलिया मांग ही नहीं रहा है, तो आप नई डिजाइन दिखाओगे कैसे उससे? यही हमारा काम शुरू हो रहा है, यहाँ से काम शुरू हो रहा है। अगर आपने उसको कोई अट्रैक्टिव नई चीज और अच्छी प्राइस में दिखा दी तो वो नेचुरली वो बाई कर देगा। Okay, so you think retailer can influence provided he has a good product? Yes, he has to invent new colors, new style, new design. Manufacturer and retailer both has to work together. Okay. As per because I tell you, the customer is the teacher to us. तो हमें कस्टमर की बात बड़े शांति से सुननी है, उसकी आवाज सुननी है। काफी कस्टमर्स हैं जिनको जब ऑनलाइन आप बात करते हैं और ऐसे ऐसे कस्टमर सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े चेयरमैन ऑनलाइन को, जो जिनको टाइम नहीं है बात शॉप पे आने के लिए, वो जब ऑनलाइन पे आपसे बात कर रहा है और वो कह रहे हैं यार मुझे ये भिजवा दो, यार इतनी बेडशीट भेज दो, ऐसी कोई चीज है मखमल जैसी लगे, ऐसी लगे जो खरगोश जैसी लगे, ऐसी लगे जो यार फाइननेस लगे, तो देन इट बिकम सो कि यार देखना पड़ता है कि कहाँ से ढूंढ के क्या चीज लेकर दे आदमी। तो देन फील लगता है कि यार अभी तो हमें ये चीजें बहुत कुछ है जो होम के अंदर करने की जरूरत है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत है, बहुत रिक्वायरमेंट है। मतलब उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी अंदर एक कैपेसिटी चाहिए, किचन चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करके और उसको डिलीवर करने के लिए। काफी आप देखते हैं, काफी हम एग्जीबिशंस लगती है, हमारे इंडिया के इतने बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जब हम उनके स्टोर पर, उनके स्टॉल पे खड़े होते हैं तो जनरली या तो वो आदमी को खड़ा कर देते हैं, अंदर ना आने के लिए मना कर देते हैं, या वो ये कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट सर ये तो हम ये इंडिया में नहीं बेचते। यार ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक जो रिटेलर जो हम प्रोडक्ट देना चाहते हैं कस्टमर को, वो हमें जितने भी बड़े एक्सपोर्टर्स हैं माल देना नहीं चाहते, वो अलाउ ही नहीं करते अपने स्टॉल में एंटर करने के लिए, खड़े हो जाते बीच में, यूं सर देख लिया ना आपने, बस ठीक है, हम करते नहीं सर, हम आपको इंडिया में करते नहीं, इंडिया में नहीं। हाँ राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, राजेश जी डिफरेंट, राजेश जी का जो एरिया है वो एक अलग एरिया है। मैं जो बात करता हूँ, आप जितने भी आप देखिए मुरादाबाद चले जाइए, बेडशीट के यहाँ के जितने भी नोएडा के एक्सपोर्टर्स हैं, दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं, इतने हैं जिससे माल मांगो वो हाथ खड़ा कर देते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी, अब बोलिए राजेश। उसकी मैं वजह बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं खुद भी कई बार ISGF जाता हूँ मार्ट में, तो वो अगर मैं सोचता हूँ मैं अपने प्रोडक्ट रेंज में कुछ ऐड करूँ, तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक मैं स्टैंड में गया तो उसको मैंने बोला कि ऐसे है, तो वो ऐसे मुड़ा जैसे कोई छूत आ गया। सही बात है। तो ऐसे घूमा कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया। जो लोग सेट हैं, जिनको आता प्रॉब्लम जो एक्सपोर्टर की है, जो मैं समझता हूँ, उन सबको आदत है कि ऑर्डर दे दो और माल बना के भेज देंगे। कोई पैसे लगाना नहीं चाहता कि माल बना के रखो और फिर 2 पीस 4 पीस 10 पीस बेचो। दिस इज द चैलेंज। Jagdish ji, Rajesh ji, it is very clear, exporter is a manufacturer, he is not a marketeer. करेक्ट। ये इसमें होलसेलर कोई आएगा तो वो करेगा। तो ये काम या ब्रांड का है, ये काम मैन्युफैक्चरर का है ही नहीं। मैन्युफैक्चरर का काम तो आप जो बोलोगे वो बना के देगा, इसीलिए वो ही इज हैप्पी बीइंग अ मैन्युफैक्चरर। नहीं, उसमें एक अरुण, इसमें क्या है कि उनके पास देखिए काफी माल बनाते हैं, वो काफी माल हमने उनको यहाँ तक भी ऑफर करा कई बार कि यार आपके जो बनाते हो, जो बन रहा है वो दिखा दो हमें, उसमें से हम 2-4 पीस ले लेंगे। So I think ये प्रॉब्लम दोनों जगह है, रिटेलर की अपनी जगह, बट आई थिंक दिस एज द वॉल्यूम्स ग्रो ये प्रॉब्लम शायद रिजॉल्व होगी। अच्छा, अब देखिए बड़े बड़े स्टालवर्ड यहाँ बैठे हैं, आई थिंक वी कैन गो ऑन डिस्कसिंग दिस एंडलेसली, लेकिन और मेरी तो इच्छा है कि इट शुड गो ऑन, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम इज अ कंस्ट्रेंट और काफी सवाल भी आए हैं पैनल पे।
सो कुछ लोगों के स्पेसिफिक सवाल मैं समझता हूँ कि आपसे मैं पूछना चाहूंगा। तो कुछ लोगों का पूछना ये है कि ये which categories will recover faster and which categories will be slow to recover after the COVID era? आपके पास में इसका स्पेसिफिक कोई नहीं नहीं, ये जनरल है ये। ये मतलब general बिकॉज है। एवरीथिंग गोज टुगेदर। सॉरी, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ, ये कहना मुश्किल है। It is the choice of the customer. हाँ हाँ, अच्छा, The एक customer- सवाल ये है कि do you think now that work from home is becoming a new reality of everybody's life, तो होम और ऑफिस का कोई इंटीग्रेशन होगा? For example, will furniture become a new line addition to all furnishing stores? Yes. Because जो फर्निशिंग और डेकोर के साथ में ही वो एक स्टडी टेबल, एक स्टडी चेयर या एक बच्चों के रूम का कोई छोटा जो स्पेशली जो छोटा फर्नीचर है, do you think that is going to be added to most of the furnishing or your kind of stores? Sulaiman bhai, what do you think? See, as I said, the extension of furnishing, the immediate extension will be the small furniture, as you said. But I don't think a writing table or a chair would be an addition. Maybe some side tables and some center tables, that could be an addition as a lifestyle of the furnishing store. Because furniture itself is a big line in itself. Right? There's a lot of width and depth that is available into a furniture store. So I don't see that furniture and furnishing will get integrated in a very short span of time, or we'll have to move to the format which Mr. Mahajan said in the beginning, that the huge store where you have the entire office setup or a bedroom setup which can be sold as a setup. But to add to loose furniture, I think smaller furniture which can be added as an accent or as a fashion, like side tables and center tables, that could be the immediate addition to any furnishing store. But I don't see furniture as a immediate addition to any of the furnishing store, because as a format, the furnishing stores are not very huge and large, mostly. So there is a challenge of space in every furnishing store. I don't see that as an immediate addition from my side. अरुण जी, बीच में बात करना चाहूंगा, क्यों क्लोजिंग पे हैं। अपने राजेंद्र गुप्ता जी के फादर जो है नूरचंद गुप्ता जी का, उनका स्वर्गवास हो गया ऑन दिवाली डे। ओहो। तो उसके लिए थोड़ा सा बस मैं ये चाहता कि एक बार हमें थोड़ा सा एक कंडोलेंस अपनी तरफ से कहना चाहिए बस। हाँ बिल्कुल, हमें बहुत दुख हुआ ये सुन के, और हम सब अपनी श्रद्धांजलि डेफिनेटली गुप्ता जी को, उनकी फैमिली को, ट्राइडेंट के परिवार को देना चाहेंगे। और जगदीश जी, आप बताएं, हम अगर उसके लिए एक प्रार्थना करना चाहते हैं तो हम 30 सेकंड के लिए वो कर सकते हैं। आई थिंक ओम शांति। तो अब
ये सवाल तो बहुत आए मेरी पैनलिस्ट से। एक रिक्वेस्ट है कि क्या हम इन पे ईमेल से कुछ जवाब दे सकेंगे, क्योंकि टाइम तो खत्म हो रहा है हमारे पास में। तो बहुत सारे सवाल हैं ऑडियंस के, तो कैन आई रिक्वेस्ट द पैनलिस्ट कि हम कुछ सवाल अगर हम आप ईमेल पे भेजें तो ऑडियंस को हम अश्योर कर सकते हैं कि वो सवाल हम ईमेल पे उनके जवाब दे सकेंगे। ओके विद हाँ बिल्कुल दीजिए, Sure, बिल्कुल sure. दीजिए। Definitely, we can do that. क्योंकि काफी सवाल हैं, पूरे होंगे नहीं। मैंने बीच बीच में कुछ सवाल पहले भी पूछ लिए थे। तो कुल मिला के आज की बात का सारांश जो मुझे लग रहा है वो ये है कि रिटेल सीजन अच्छी रही। हर एक जोन में रिटेलर्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे, और सो वी कैनॉट जनरलाइज, जैसे वी कैनॉट जनरलाइज द मार्केट, वी कैनॉट जनरलाइज द आउटकम ऑफ पोस्ट कोविड इरा। हर एक को अपनी अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अपने अपने स्टोर की कस्टमर की प्रोफाइल के हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टोर की कस्टमर प्रोफाइल भी अलग अलग है। जैसे हर स्टोर की साइज अलग है, हर स्टोर का मर्चेंडाइज, ब्रांड्स, हर रीजन की डिमांड अलग है, हर रीजन के सो ये डाइवर्सिफाइड, तो ये तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो हिंदुस्तान की प्रोफाइल रही है शुरू से, आज कोई नई बात नहीं है। तो यानी एक चीज जो क्लियरली जो सामने आ रही है सारे डिस्कशन से, कि जो रिटेलर सोचेगा, जो रिटेलर कोई नई स्ट्रेटेजी लाएगा, या जो रिटेलर या ब्रांड नया आउटलुक लाएगा, उसके लिए बिजनेस की कमी ना अभी भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। तो रियल चैलेंज जो मुझे जो सारी बातों का सार लगा है वो ये है कि रियल चैलेंज इज नॉट द ऑनलाइन रिटेलर और लार्ज फॉर्मेट रिटेलर, क्योंकि ये तो क्लियरली सभी बोल ही रहे हैं कि सबका बिजनेस अच्छा हुआ है, और हाई स्ट्रीट या तो स्टैंड अलोन रिटेलर्स और स्पेशलिटी रिटेलर्स हैव डन बेटर देन द ऑनलाइन देन द मॉल स्टोर्स, मॉल स्टोर्स। सो ये तो क्लियर है। इसका मतलब कंज्यूमर तो वहां जा ही रहा है और कंज्यूमर वहां जाता ही रहेगा। अब उसमें से कुछ स्टोर अच्छा करेंगे, कुछ नहीं अच्छा करेंगे, दैट इज अ फंक्शन ऑफ कि हर स्टोर अपनी खुद की बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे बनाता है। तो ये एक जनरलाइज्ड आंसर इसका शायद नहीं हो सकता है। हर रिटेलर जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है उससे यही कहना चाहता हूं कि आपको अपने बिजनेस के बारे में खुद भी सोचना पड़ेगा। यू कैनॉट ओनली डिपेंड, एज जगदीश जी वेरी राइटली सेड, कि खाली आप ब्रांड पे डिपेंड नहीं हो सकते स्टोर की प्रोफाइल बनाने के लिए, आपको स्टोर की भी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। सो वेरी, और ये बहुत अच्छी तरह प्रूव किया है सुलेमान भाई ने, नीरव ने, महावीर जी ने, जगदीश जी, अपना राजेश जी ने। इनफैक्ट इनका तो इतना इंटीग्रेटेड अप्रोच है रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांडिंग तीनों को लेके। So this is a classical example that how, and he has also made his brand international, you know, in so all possibilities are there. ये सवाल कुछ लोगों ने पूछे हैं अभी यहाँ पे कि होम फर्निशिंग का फ्यूचर क्या है। अब ये सवाल तो मुझे लगता है कि होम फर्निशिंग का फ्यूचर तो ब्राइट ही है, इसका सवाल तो एक ही है। अब उसमें रियल सवाल जो है वो ये है कि मेरा फ्यूचर होम फर्निशिंग इंडस्ट्री में क्या है, you know. so मुझे लगता है कि that is the real question that everybody needs to ask. तो बहुत से आई थिंक पॉइंटर्स निकले आज के पैनल डिस्कशन में। हाँ जी, हाँ मैं इस पे एक थोड़ा सा चुटकुला सुनाना चाहूंगा। एक बार ना एक लड़का पढ़ के आया और MBA करके आया, अपने फादर के पास जाता है, कहता है आपको मालूम नहीं है रिसेशन चल रही है, हालात बहुत खराब हैं, देख समझ के चलना। तो उसके फादर जो थे वो न्यूयॉर्क में हॉट डॉग स्टैंड बनाते थे, हॉट डॉग स्टैंड लगाते थे। तो वो कहने लगे हाँ बात तो तुम्हारी सही है। तो उसने क्या करा, थोड़ा सा जो है अपना माल कम ले जाने लगा, और माल कम लेके गया तो कम बिका। उसने और कम करा और कम बिका। तो फिर आके लड़के को बोलता है तुम बिल्कुल सही थे, वाकई रिसेशन है। तो हर आदमी को अपना बिजनेस देखना है, अपना तरीका देखना है, अपना प्रोडक्ट देखना है, अपनी क्लाइंटेल देखनी है।
कोई जनरलिटीज में कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं फॉर्मूला इसमें क्या राजेश जी, एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें यहाँ बॉन्टोन वाले हैं मिस्टर मदान, जो स्पेक्ट्स का काम करते हैं, चश्मे का काम करते हैं, मिस्टर बॉन्टोन वाले हैं मिस्टर मदान साहब। तो उनसे एक बार वो आए, मेरे पास बैठे हुए, जगदीश ये मंदा कब होता है? मैं कहा मंदा जब होता है जब आपकी वैरायटी इनकम्प्लीट होती है। जब आपकी वैरायटी को इनकम्प्लीट रखोगे, इसको नयापन नहीं देते रहोगे, तब तक आपको मंदे से जूझना पड़ेगा। आज कस्टमर का फुटबॉल कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब भी आएगा या जो कस्टमर आएगा, कम से कम वो तो लेके जाए। वो कहेगा यार तुम आप ब्लैक मांग रहा था, ब्लैक नहीं है, व्हाइट चाहता हूँ तो व्हाइट नहीं है, तो देन वो उसके लिए मंदा ही रहेगा। हाँ, एक देखिए, और दूसरा मैं समझता हूँ कि रिटेलर को एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि कंजम्पशन तो हिंदुस्तान में ग्रो हो ही रहा है, 15 से 20% डिमांड हर साल ग्रो हो रही है। ये स्टैटिस्टिक्स तो आ ही रहे हैं हमारे पास में, रोज आते हैं। तो अगर 15-20% डिमांड ग्रो हो रही है, कंज्यूमर उतना ज्यादा खरीद रहा है, तो मेरा स्टोर क्यों नहीं चल रहा है? या मेरे तो प्रोबेबली वो कंज्यूमर को देख ही नहीं रहा रिटेलर। वो शायद सारा ध्यान उसका ब्रांड और सप्लायर या डिस्काउंट या पेमेंट टर्म्स या एडमिनिस्ट्रेशन पे ही है, या कॉस्ट कटिंग पे है। तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर बिलोंग्स टू कॉस्ट कटिंग। फ्यूचर बिलोंग्स टू इन्वेस्टिंग इनटू बिल्डिंग अप योर स्टोर प्रोफाइल एंड कस्टमर रिलेशन और मर्चेंडाइज और इनोवेशन। तो ये सारी नए वर्ड्स मेरे को लगता है हर रिटेलर को सीखने पड़ेंगे। दे कैन नॉट से कि वो तो जगदीश जी का चलता है बिकॉज वो तो जगदीश जी हैं, दे कैन नॉट से कि वो तो सुलेमान भाई का चलता है बिकॉज उन्होंने तो 6 स्टोर कर लिए। सवाल ये 6 स्टोर इसलिए किए कि वो सुलेमान भाई वेरी राइटली सेड कि 10 साल लगे उनको 1 से 2 स्टोर करने में, लेकिन 2 से 6 स्टोर करने में 5 ही साल लगे। सो ये प्रोबेबली लर्निंग शायद इस पैनल डिस्कशन से सभी के लिए है। वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लियर, नीरज इज वेरी क्लियर कि मुझे स्टोर बढ़ाने ही नहीं है, बंबई में रियल एस्टेट का पैसा कौन देगा। बट हिज बिजनेस इज ग्रोइंग with the same size of store, with the same number of 2 stores which have been there, I think, I do not know, neither for 15 years, 20 years. So ये सीक्रेट आपको शेयर करना पड़ेगा शायद किसी दिन सबसे, कि मैं उतना ही स्टोर उतना ही साइज का रखे, बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए, बिना ऑनलाइन जाए, हाउ डिड आई इंक्रीज माय बिजनेस एंड हाउ डू आई दैट। सुलेमान भाई ने जैसे कहा, प्रोफेशनली हमें अब बिजनेस को देखना, करेक्ट, प्रोफेशनली देखना। So I wish all of you the very best, and I hope that the season ahead will be very good. My personal opinion is it will be very good because लोगों को घर में इन्वेस्ट है। मैंने तो क्लियरली कहा कि नेक्स्ट, मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि नेक्स्ट कुछ साल होम के अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ आनी है। वी आर वेयर द फैशन इंडस्ट्री वाज फ्यू इयर्स बैक, एज वी सेड। तो यहाँ पे बहुत नए ब्रांड आएंगे, बहुत नए प्रोडक्ट आएंगे, बहुत रिटेल में ग्रोथ होगी, क्योंकि कंजम्पशन में इंडियन कंज्यूमर अब होम के ऊपर खर्चा करेगा, ये बहुत क्लियर है। अब वो खर्चा करने के लिए वो कहाँ जाएगा, ये खाली एक सवाल है जिसका जवाब तो सबको यही करना, वो मेरे स्टोर में आए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और ज्वाइन करने के लिए। एंड आई लुक फॉरवर्ड, अब जितना जल्दी हो सके, मैं तो चाह रहा हूँ कि फिजिकली आप सबसे मुलाकात हो, हमारे पैनलिस्ट से, हमारे ऑडियंस से जितना जल्दी। तो जून में तो हम लोग देख ही रहे हैं, जून 8, 9, 10, 11 जुलाई को तो होपफुली आई विल सी ऑल ऑफ यू। उससे पहले अगर सरकार बोले कि जाके मिलके आ सकते हो जगदीश जी से और महावीर जी से और सुलेमान भाई से, राजेश जी से, तो मैं जरूर आऊंगा। और नीरव से is the only person I could meet physically pre-Diwali, and believe me, he took 1 hour before he could pay attention to me, and he had so many customers in his shop. So that was a good experience. It was in a positive way, I'm saying. So thank you very much. Madhur, over to you, please. Thank you. आपका बहुत धन्यवाद. Thank you everyone for your esteemed words. I thank all the panelists for sharing their thoughts, the audience for being such a patient listener. Thanks everyone for taking out time today and being with us, sharing your thoughts and making it exciting for all of us.
Wish you all a very happy retailing. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Rajesh ji. Thank you. Okay, Thank ji. you.